Hello students, this is a 10th chapter that is human health and diseases. In this part of the video, we will study about common human diseases. What are those diseases which are common in our day-to-day life? We will going to study about different types of diseases. So let's begin. First, let's go with the introduction part. As disease is defined as a condition of disturbed or deranged functioning of one or more organs or organ systems of the body. Disease is defined as condition of disturbed or deranged functioning of one or more organ or organ system of the body caused due to infection, कोई इन्फेक्शन के वजह से हुआ है. डिफेक्टिव डाइट और हेरिडिटी, जो डाइट है वो ख़राब है. हेरिडिटी मीन्स उनकी फैमिली में कोई जीन में कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए रिलेटेड टू हेरिडिटी में कोई डिफेक्ट है, इस वजह से डिजीज़ेस हो रही है. ऑल ह्यूमन डिजीज़ कैन बी ब्रॉडली characterized into congenital disease and acquired disease. पूरे ह्यूमन डिजीज़ जो है वो ब्रॉडली कैरेक्टराइज्ड मतलब दो पार्ट में डिवाइडेड है. पहला है कॉन्जेनाइटल डिजीज़ और दूसरा है एक्वायर्ड डिजीज़. So students, what is congenital disease? Congenital मतलब होता है बहुत पहले से कोई चीज़ है उसे बोलेंगे congenital है. Okay, congenital disease are present from birth, may be caused by genetic abnormality. Congenital disease जो है वो birth से present है and it is caused by सम जेनेटिक एबनॉर्मलिटी, कोई जीन में प्रॉब्लम है जिसके वजह से कॉन्जेनाइटल डिजीज़ हुई है. या तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिज्म मीन्स कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू एनर्जी में प्रॉब्लम है. दे मे बी परमानेंट एंड वेर प्रैक्टिकली इनक्योरेबल, ये परमानेंट होती है और प्रैक्टिकली अगर देखेंगे तो ये क्योरेबल नहीं है. However, modern research has helped to cure some inborn diseases through gene therapy, enzyme replacement therapy, etc. Modern research ने क्या help किया है? To cure some inborn diseases through gene therapy or enzyme replacement therapy. This is clear? Moving next, एक्वायर्ड डिजीज़ेस क्या है? एक्वायर्ड डिजीज़ेस डेवलप आफ्टर बर्थ. ये कब डेवलप हो रहे हैं? बर्थ के बाद डेवलप होने वाली जो भी डिजीज़ेस है उसे बोलेंगे कि इसने एक्वायर किया है. ओके, एक्वायर्ड डिजीज़ेस डेवलप आफ्टर बर्थ एंड कैन बी सब डिवाइडेड. और ये जो एक्वायर्ड डिजीज़ है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है. एक है कम्युनिकेबल या फिर इन्फेक्शियस डिजीज़ एंड सेकेंड इज़ नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़. क्लियर? फर्स्ट इज़ कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज़, सेकेंड इज़ नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़. दिस इज़ द फैक्ट. Now, what is communicable and what is non-communicable diseases? The disease which are transmitted from infected person to another healthy person, either directly or indirectly, are known as communicable or infectious disease. वो डिजीज़ जो ट्रांसमिट हुई है कोई इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में, या तो डायरेक्ट कांटेक्ट से या तो इनडायरेक्ट कांटेक्ट से
ऐसी डिजीज़ को बोलते हैं कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज़. Malaria and other disease which are to be studied in this chapter are the example of this type. Clear? Then the disease that cannot be transmitted from infected person to another healthy one directly. Okay. So non-communicable disease क्या है? The disease that cannot be transmitted from infected person to another healthy person. From infected person to another healthy person, either directly or indirectly, are known as non-communicable or non-infectious disease. Cancer and deficiency diseases are the example of this type of disease. Then communicable disease are caused by pathogens like viruses, bacteria, fungi, helminth worms, etc. कम्युनिकेबल डिजीज़ कैसे स्प्रेड हो रही है? वायरस की वजह से या बैक्टीरिया की वजह से और फंगाई और worms etc. All the disease causing organism are called pathogen. All the disease that is causing an organism, जो एक ऑर्गेनिज्म को कॉज कर रही है, ऐसे टाइप के डिजीज़ को बोलते हैं पैथोजेंस. उन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं पैथोजेंस जो कि डिजीज़ को ट्रांसमिट कर रही है. देन many pathogen use another organism, that is the vector, to reach us. बहुत सारे पैथोजेंस क्या करते हैं? एक दूसरा ऑर्गेनिज्म की मदद लेते हैं, उसका नाम देते हैं वेक्टर. वेक्टर क्या हो गया? जैसे मॉस्क्यूटो है तो मॉस्क्यूटो इज़ अ वेक्टर. वो ऑर्गेनिज्म तो नहीं है, वो एक वेक्टर है. तो मैनी पैथोजन यूज़ अनदर ऑर्गेनिज्म, the vector, to reach us. These vectors are actually parasites which we regularly come across. ये vectors एक parasite है. मॉस्क्यूटो क्या है? पैरासाइट है. तो ये जो वेक्टर है वो एक पैरासाइट है which we regularly come across. पैरासाइट क्या है? पैरासाइट is an organism that lives in on or on the body of another organism and derive its nutrition from that host organism. पैरासाइट क्या है? पैरासाइट ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर रहता है या उसके अंदर रहता है, एंड उससे जब वो पैरासाइट एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर जा रहा है तो उसका सारा न्यूट्रिशन अपने अंदर डिराइव कर लेगा. And this is called as parasite. पैरासाइट की दो कैटेगरीज हैं. पहला है एक्टोपैरासाइट, फॉर एग्जांपल बेडबर्ग. थर्ड है एंडोपैरासाइट, इसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, इज़ अ प्रोटोजुअल एंडोपैरासाइट ऑफ द मॉस्क्यूटो, वेक्टर एंड ह्यूमन बीइंग. सो एज आई टोल्ड यू, ऊपर ही वेक्टर मैंने का एग्जाम्पल मैंने मॉस्क्यूटो से रिलेट किया था. तो पैरासाइट के दो टाइप है, एक है एक्टोपैरासाइट, एक है एंडोपैरासाइट. नाउ मूविंग टू द डिजीजेस स्टूडेंट्स, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. एंड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक्स हर साल पूछते हैं. हर साल इस चैप्टर के मार्क्स बराबर काउंट में होते हैं एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. नाउ कमिंग टू मलेरिया, इट इज़ अ वेक्टर. वेक्टर क्या है? मॉस्क्यूटो. इट इज़ अ वेक्टर मॉस्क्यूटो बॉर्न डिजीज़ कॉज्ड बाय प्रोटिस्ट. प्रोटिस्ट इज़ अ फैमिली. प्रोटिस्ट में कौन? प्रोटिस्ट में प्लाज्मोडियम. There are 4 species of Plasmodium as Plasmodium vivax, ovale, malariae, falciparum. And out of all this, only
Plasmodium falciparum cause serious illness while the other are rarely fatal. Based on the species, there are 4 types of malaria. ये मॉस्किटो के भी 4 टाइप होते हैं. फैमिली एक है, भाई बहन 4 है, वी कैन से लाइक दैट. फैमिली का नाम है इसके प्लाज्मोडियम. अब ये प्लाज्मोडियम के अलग 4 स्पीशीज़ है. एक है पी वाइवेक्स, ओवेले, मलेरिए, फेल्सीपेरम. जो फेल्सीपेरम है लास्ट वाला, इट कॉज सीरियस इलनेस वाइल अदर आर रेयरली फेटल. फेल्सीपेरम अगर टाइफॉइड अगर लास्ट स्टेज पे आ गया वो है फेल्सीपेरम. फेल्सीपेरम पे अगर टाइफॉइड आ गया है तो इट विल कॉज वेरी सीरियस इलनेस. बेस्ड ऑन द स्पीशीज there are 4 types of malaria. What are the signs and symptoms of malaria? Symptoms of malaria begin to appear about 7 to 15 days after the bite of infective mosquito. मॉस्किटो अगर एक बार कट कर लिया तो उसके 7 से 15 दिन के बाद इस मलेरिया के सिम्टम दिखाई देते हैं. इनिशियल सिम्टम्स आर फीवर, हेडेक एंड चिल्स. मे बी डिफ़िकल्ट टू रिकॉग्नाइज एज मलेरिया. इनिशियल सिम्टम क्या होते हैं? उस इंसान को बहुत ज़्यादा फीवर होगा, हेडेक होगा, चिल्स होंगे. तो इस वजह से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है मलेरिया पेशेंट को फाइंड करना बिफोर ब्लड टेस्ट. Classic symptoms of malaria is cyclic occurrence of high fever followed by sweating. ये क्या है? अगर पहले के ज़माने में तो ब्लड टेस्ट नहीं होते थे, तो पुराने लोग क्या कैसे पहचानते थे मलेरिया को? अगर फीवर है, बहुत ज़्यादा हाई फीवर है एंड दैट टू स्वेटिंग के साथ है एंड सडन शिवरिंग हो रही है. ओके, हाई फीवर फॉलोड बाय स्वेटिंग एंड सडन शिवरिंग, तो उस इंसान को मलेरिया है. सच एंटायर एपिसोड लास्ट फॉर 4 to 6 hours. कितने घंटे तक रहता है? 4 से 6 घंटे तक रहता है ऐसा ही एपिसोड. एंड रिकरर एवरी 2 days और 3 days. और वो हर 2 दिन में या 3 दिन में रिकवर होना स्टार्ट कर देगी. फिर इसका सिम्टम है वॉमिटिंग एंड कन्वर्जन्स. उसे वॉमिट जैसा होगा, कन्वर्जन्स आएंगे बार बार. नेक्स्ट सिम्टम है एथ्रेल्जिया. एथ्रेल्जिया मतलब जॉइंट पेन. देन अनीमिया ड्यू टू कैप्चरिंग ऑफ आरबीसीज. देन हीमोग्लोबिनूरिया, हिपैटोमेगाली. हिपैटोमेगाली होता है लीवर एनलार्जमेंट. रेटिनल डैमेज. रेटिनल डैमेज मतलब हमारी आँख की जो रेटिना है वो डैमेज हो जाती है. सेरिब्रल मलेरिया इन्फेक्ट आर ब्रेन. ये सारे साइन एंड सिम्टम थे मलेरिया के. मूविंग नेक्स्ट, ये वो 4 स्पीशीज़ है प्लाज्मोडियम के. पहला है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड है 14 days एंड पैटर्न ऑफ हाई फीवर कैसे? हाई फीवर आफ्टर 48 hours इंटरवल. ओके. सेकेंड है प्लाज्मोडियम मलेरिए, इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 28 days एंड पैटर्न ऑफ हाई फीवर होगा एट 72 इंटरवल. एट 72 hours में इसका इंटरवल होगा. थर्ड है प्लाज्मोडियम ओवाले, ये 17 days का होगा. इसमें भी पैटर्न ऑफ हाई फीवर क्या है? हाई फीवर होगा बट आफ्टर 48 hours इंटरवल, जस्ट एज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स. लास्ट है प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड होगा 12 days. हमने पहले ही पढ़े कि फेल्सीफेरम बहुत स्ट्रॉन्ग है. हाई फीवर एट इरेगुलर इंटरवल्स
बिटवीन 28 to 48 आवर्स। अगर 28 से 48 आवर्स ये कंटिन्यूस क्लास ले रहे, 28 टू से 48 आवर्स तक के इसका जो फीवर है वो पूरे बॉडी में स्प्रेड होगा, हाई फीवर होगा। फिर एक रेगुलर इंटरवल आएगा बिटवीन 22 टू 48 आवर्स के अंदर। ये हो गया हमारा टाइफॉइड। ये है साइकिल ऑफ टाइफॉइड। एक बार जब मॉस्किटो जो है वो बैठ जाता है, ओके, स्टेजेस इन लाइफ ऑफ प्लाज्मोडियम इन मॉस्किटो एंड ह्यूमन। पहले एक मैच्योर मॉस्किटो माइक्रोगैमेट देती है, उसके बाद वो गैमेट जो है वो बड़ा होता है, मैक्रोगैमेट बन जाता है। उसके बाद जाइगोट, देन मॉस्किटो मिडगट, फिर oocytes, बर्निंग oocyte, देन है स्पोरोजियल्स, नो सलाइवरी ग्लैंड। फिर ह्यूमन स्किन है। अब हम लोग नीचे से नहीं देखेंगे, ऊपर से देखेंगे। जैसे ही मॉस्किटो ने ह्यूमन स्किन में इंजेक्ट किया तो हिपैटिक सेल रिलीज़ हो गए। हिपैटिक सेल रिलीज़ होने से क्या रिलीज़ हो रहा है, हाइपोजोनिट, हेपैटिक डोरमेंसी। उसके बाद मैच्योर स्कीजोन, फिर उसके बाद एरिथ्रोसाइट, ट्रोपोसाइट, फिर रप्चर्ड एरिथ्रोसाइट, फिर नेक्स्ट है एरिथ्रोसाइट स्कीमैट्स, देन न्यूली इन्फेक्टेड एरिथ्रोसाइट गैमेटोफाइट। Then diagnosis and treatment. Malaria can be diagnosed by microscopic study of blood smear. Microscope में we can study malaria agents, that is plasmodium, and by taking a sample of blood and then smear it on a test tube. ऐसे स्मीयर करेंगे, उसके बाद इसको माइक्रोस्कोप में स्टडी करेंगे तो वी कैन स्टडी प्लाज्मोडियम वेरी वेल. Beside other rapid diagnostic tests based on nucleic acid amplification techniques are also used. Then what have to be given in the treatment of malaria? Treatment of malaria include artemisinin based combination therapies. Artemisinin based combination therapies. WHO has recommended 5 different ACTs which include various combinations of artesunate, sulfadoxine, pyrimethamine, etc. In addition, quinine is also used. We have learned about this word chloroquine nowadays. So in malaria treatment, quinine is also used. Then how to prevent and control the disease? Prevention of mosquito bite by using mosquito nets and insect repellents. We can prevent mosquito bite by using mosquito nets and insect repellents, spraying insecticides and draining stagnant water. जो इंसेक्टिसाइड है उसे स्प्रे करना है एंड जो स्टेगनेंट वाटर है वेयर मॉस्किटो ले एग्स उसे ड्रेन कर देना है. मॉस्किटो लार्वे कैन बी कंट्रोल्ड बाय using Gambusia freshwater fish, that is biocontrol.
मॉस्किटो लार्वे कंट्रोल होता है बाय यूजिंग कंबोशिया फ्रेश वाटर फिश, दैट इज़ बायो कंट्रोल भी बोलते हैं इसे। तो हियर वी हैव कंप्लीटेड अबाउट मलेरिया। ये फर्स्ट डिजीज़ हमारी कंप्लीट होती है। मूविंग टू द नेक्स्ट डिजीज़ है एमियोबियासिस। एमियोबियासिस इज़ ऑल्सो नोन एज एमियोबिक डिसेंट्री। Amniotic dysentery. It is the most common infection of human gastrointestinal tract, which affect 15% population of India. Amoebiasis is caused by a protist parasite, that is Ant amoeba histolytica. प्रोटोजोन डिजीज़ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो एजेंट है वो है एंट अम्यूबा हिस्टोलाइटिका। देन दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ एंट अम्यूबा हिस्टोलाइटिका। यर एम्यूबुले सिंगल सेल फॉर्म होता है, फिर उसमें वो ग्रो होता है। देन ट्रोफोजोइट binary fission, pre-cytic form, chromatoid bodies, then binucleate cyst, उसके बाद quadrinucleate cyst, then come excitement, then metacystic amoeba, उसमें डिवीज़न हो रहा है थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये है लाइफ साइकिल ऑफ हिस्टोलाइटिका। This is important for exam point of view also. Exam point of view also this is important. Then moving to the next slide. What are the signs and symptoms? First we will face diarrhea. Flatulence means gases. Stool with mucus and abdominal pain, that is cramps, are common. Passing of blood with stool is common in severe cases. Hepatomegaly occur if parasite enters the liver. Hepatomegaly means enlargement of liver, occur if parasite enters the liver. Liver develops amoebic liver abscess accompanied with fever and pain in right abdomen. लीवर के अंदर क्या होगा? लीवर डेवलप करेगा, एमियोबिक लीवर में एब्सेस डेवलप करेगा, जो फीवर और पेन भी आएगा उस एब्सेस के वजह से। तो ये था इसका साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एमियोबिक डिजीज़। What is mode of transmission? Mode is fecal-oral route, eating with dirty hands, contaminated food and water. Diagnosis and treatment में diagnosis of amoebiasis is made through microscopic examination of the stool sample. We have to give a sample of our stool, and then that is studied under microscope. Amoebiasis is treated by the use of metronidazole, tinidazole, which can destroy the E. histolytica in the digestive tract as well as other tissues. Amoebiasis is treated by the use of metronidazole. You have to remember the names. Metronidazole, tinidazole, which can be destroy the amoeba histolytica in the digestive tract as well as other tissue. Moving to the next slide है prevention and control. How we can control this disease? How we can control
this dysentery. Wash hand with water. Stop soap. Wash hand with water and soap after using toilets and changing baby's diaper. Drink boiled water, otherwise water must be chlorinated and filter. Avoid eating unhygienic food. You should not eat unhygienic food. We have to change baby's diaper on time, and also wipe baby with a very clean and hygienic manner. We should drink boiled water. Otherwise water must be chlorinated and filtered. Avoid eating unhygienic food. Vegetable must be properly washed and cooked. Proper sanitary facilities, including sewage disposal, help in prevention. Proper sanitary facility should be given. Sewage disposal should be done in a proper manner, and in preventing that the environment must not get polluted because of that. So this is the prevention and control of this disease. Moving to the next disease. नेक्स्ट डिजीज़ है हमारी एस्कैरियासिस. इट इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज़ ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. ह्यूमन की इंटेस्टाइन की ट्रैक्ट की डिजीज़ है ये. कॉज्ड बाय राउंड वॉर्म, जिसे बोलते हैं एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड्स. Ascaris lumbricoid is an endoparasitic roundworm और nematode भी बोलते हैं. राउंडवर्म और nematode. क्लियर स्टूडेंट्स? जो पेट के कीड़े हो जाते हैं, पेट में कीड़े हो गए, सो हम लोग ये बात बहुत बार सुनते हैं. तो उस डिज़ीज़ का नाम है एस्कैरियासिस. ये एक राउंड वॉर्म, ये राउंड वॉर्म की इमेज दिख रही है. ये ऐसे राउंड वॉर्म इसे फॉर्म करता है. इस वॉर्म का नाम है एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड्स. एंड एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड एक एंडोपैरासाइटिक राउंड वॉर्म है, या इसे नीमाटोड भी बोलते हैं. ओके, देन व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स. जिस इंसान को एस्कैरिस हो रहा है उसके साइन और सिम्टम क्या होंगे? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट accompanied with vomiting and fever. कॉमन सी चीज़ है कि हमारी गैस्ट्रिक में प्रॉब्लम है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में प्रॉब्लम है. तो गैस्ट्रिक मतलब क्या होता है? हमारा एब्डोमेन का रीजन. तो जब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में प्रॉब्लम है, डिस्कम्फर्ट है, तो उसके साथ साथ हमें वॉमिटिंग होगा, फीवर होगा. देन प्रेजेंस ऑफ लाइव वॉर्म्स इन फीकल मैटर. जिंदा कीड़े निकलेंगे फीकल मैटर से. पल्मोनरी डिजीज़ डिसऑर्डर अकर इन सम पेशेंट. पल्मोनरी डिसऑर्डर्स अकर होते हैं कुछ पेशेंट्स में, जैसे कि न्यूमोनाइटिस, इन्फ्लेमेशन इन एल्वियोलर वॉल. पल्मोनरी मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू लंग्स. लॉस ऑफ एपेटाइट एंड वेट लॉस. भूख पूरी तरीके से मिट जाएगी उस इंसान, जब वो इंसान पेशेंट खाएगा ही नहीं तो ऑटोमेटिकली उसका वेट भी लूज़ होगा. ईओसिनोफीलिया. ईओसिनोफीलिया मीन्स number of eosinophils is increased. ईओसिनो एक टाइप का सेल है हमारे ब्लड में, तो वो ईओसिनोफिल्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं. ये हो गया एस्कैरियासिस. देन व्हाट आर द मोड ऑफ ट्रांसमिशन. फूड एंड ड्रिंक्स contaminated with the egg of this worm is the main mode of transmission. मतलब कंटामिनेटेड फूड से या ड्रिंक से हम लोग इस डिज़ीज़ को स्प्रेड कर रहे हैं.
egg hatch inside the intestine of the new host. सिर्फ वहीं पे एग हैच होता है जो न्यू होस्ट हो, पुराने पे नहीं. The larvae pass through various organs and settle as adult in the digestive system. जितना भी लार्वे होता है जो कि पास करता है थ्रू द वेरियस ऑर्गन से वो पास हो रहा है and it's settled as adult in the digestive system. Then what are the diagnosis and treatment? Diagnosis can be done by microscopic examination of the chest. Antihelminth drugs like piperazine, mebendazole, levamisole, parental are effective agent for typhoid and Ascaris lumbricoides. This is the life cycle of Ascaris lumbricoides. Swallowing by men, then intestine, फिर blood, फिर heart, then again lungs, then trachea, pharynx, esophagus, फिर intestine, adult form in intestine होता है. then जो adult कीड़े हैं वही intestine में आएंगे. फिर उसके बाद ये लोग जब ऐसे adult animals भाग ले लेते हैं reproduction में, तो they are adult now, they are called as adult. Then fertilized egg in the fetus, then the soil, ये सारी चीज़ें मिला के it is a life cycle of Ascaris lumbricoids. What are the prevention and control? Avoiding defecation in open space. Defecation means urine. Do not use urine in open place. Prevent the spread of Ascaris. Personal hygiene habits जैसे washing hand with water and soap after using toilet paper are also important. Washing vegetables thoroughly before cooking and avoiding raw vegetables is important for prevention of ascariasis. We will stop this video here only, students. In the next video we will continue with the next topic. Thank you.